Hi Akash, this is Arun from Hello. Boston. So, welcome to Aapka Radio, which is a show we hold every Sunday. Good evening to you, and we have volunteers from all over the US and Canada and Europe also. And we basically talk to functionaries who are part of AAP, and we have volunteers asking questions to understand, your journey and what you think. So, to start off with, Akash, please introduce yourself, your background, and how you came into AAP and your journey so far. Hi. Good evening to everyone. So, first of all, I have heard about Aapka Radio, and it's a great pleasure to be here with all of you. My name is Akash Verma. I live in Delhi, and I am from a very unpolitical family, from a very unpolitical background, as all of you. Lekin, when it was started in 2011, the Anna Andolan, so I joined the Anna Andolan. That time I was in my college and I was pursuing my BTech. So I was in third year start. So that अन्ना आंदोलन happened. So हम लोगों ने सोचा चलो यार जाएंगे तो सब दोस्त लोग मिलके जाते थे. Then we realized कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है. So just from then ठीक है पार्टी बनाएंगे. Yes, I'll be there. ठीक है हम लोग भी उसमें फाउंडिंग मेंबर्स बन गए. So सब कुछ अपने आप होता रहा. It was nothing planned. सब कुछ बस होता गया. स्टेप बाय चुनाव भी लड़ लिए और सरकार भी बना दी. फिर सरकार गिरा भी दी खुद ही, सीट भी छोड़ दी. फिर उसके बाद दोबारा से लड़ लिए. खैर, और इट वाज अ वंडरफुल जर्नी सो फार. आई हैव लर्नड अ लॉट और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे. करेंटली मैंने बहुत सारी चीजों पे काम किया है, बट करेंटली आई एम असिस्टिंग मिस्टर पंकज गुप्ता, हु इज द नेशनल सेक्रेटरी. आप सब लोग उनको जानते होंगे. और ही इज इन चार्ज ऑफ ओवरसीज ऑल्सो. हम लोग शायद लास्ट कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक वीडियो कॉल भी किया था पंकज सर के साथ, तो काफी सारे लोग आप में से भी उसमें होंगे. So right now I assist the national secretary, and I look after the donation work. I look after the administration work under the national secretary. So. Okay, great. Thank you. I am throwing the floor open. Please go ahead, people with your questions. Please go ahead. I'm Ashok, originally from Goa, but settled in the US now. My main question is, what is your main job? Is it like donation only on the NRI side, or is it on the local side? Like, do you work with Pankaj Gupta in Goa, or do you just see only the NRI part? No, I don't actually look after the NRI part, because he just Pankaj sir has taken that this task of overseas convener. So I'm not completely involved in overseas tasks. Sahil and Aditya Remy, they both are looking after all these things, because क्योंकि वो पहले से भी वही लोग देख रहे थे. So when it was under Prithvi Reddy sir, तो अभी जब पंकज सर ने लिया है, तो now Sahil and Aditya are now part of our team. So I assist Sahil and Aditya in the overseas work and the overseas donation and the national donation, like the Indian donation. So yeah, I look after that process, that everything is going okay. So because as I told you, I assist Pankaj sir, so I am basically looking after almost everything which comes under the national secretariat, like donations, the administration, and everything. You know, the state part. अभी तो खैर पंकज सर के पास स्टेट नहीं है, लेकिन पहले गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र. तो I used to involve in all the tasks somehow. किसी ना किसी तरह से मैं जो भी थोड़ा बहुत अपने कर सकता हूँ अपनी काबिलियत के हिसाब से, तो करने की कोशिश करता हूँ. Since the beginning, when you joined up, and what were the major challenges you faced, and how did you overcome them? To be very honest, I didn't face much challenges, because for the family was very supportive, and like I said, I was pursuing my BTech, so I was in my college days, so it was very cool life we were having during the Andolan time. And my father said कि भाई तू डिग्री पूरी कर लेना बस. तूने अगर डिग्री पूरी कर ली
तो तुम्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, आंदोलन ज्वाइन करना है, देश बदलना है, तुम सब कुछ करो, बट यू हैव टू कंप्लीट योर फिनिश योर द एजुकेशन, यू शुड हैव डिग्री। तो आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री उसके इसके साथ साथ ही, बट या यू नो ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको शायद लगता होगा कि पॉलिटिक्स में या नई पार्टीज में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन में इट्स अ गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपके सामने बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बेहतर है, तो आपको उनका स्टैंडर्ड मैच करना है। तो when Pankaj sir called me one day, he used to sit in the Connaught Place office. That time we were in Connaught Place office. Our head office was in Connaught Place office. So he came, चलो फंड रेजिंग पे कुछ प्लान बनाओ, तुम इंजीनियर हो, क्या कर सकते हो। तो I used to make new plans and he used to reject all the plans one by one. So that was the challenges, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ में बहुत अच्छा सपोर्ट भी था हमारे लीडर्स का, चाहे वो अरविंद सर हो, चाहे वो मनीष भैया हो, या पंकज सर हो, या विपुल दे हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑफिस में थे जो बहुत हेल्पफुल थे, जो आपको सिखाते थे, डांटते भी थे, लेकिन साथ में उनको ये भी करेक्शन भी करते थे, सिर्फ डांटते ही नहीं थे, करेक्शन भी करते थे। तो चैलेंजेस हमारे लिए, बेसिकली सभी के लिए, हम जितने भी वॉलंटियर्स हैं सबके लिए ये था कि हाउ लॉन्ग वी विल सर्वाइव, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर लाइफ। अभी हमें जॉब की जरूरत है, लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है। तो चैलेंज ये है, और अभी भी चैलेंज है, कि हमारा रेगुलर सर्वाइवर का, हमारी फैमिली के सर्वाइवर का। तो अच्छी बात ये है कि अभी आई एम स्टिल अनमैरिड, तो मुझे केवल अपने आप को ही देखना है, तो आई एम सर्वाइविंग। लेकिन ये एक जो चैलेंज है ये रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी पार्टी है, या जिस तरह से हमारा तरीका है, हम बहुत फेवरिंग नहीं है वॉलंटियर्स को लेके। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सरकार है तो वॉलंटियर्स को कोई बिजनेस मिल जाएगा, या वॉलंटियर्स को नौकरी मिल जाएगी सरकारी, या कुछ कमाई या दूसरी तरह से अर्निंग हो जाएगी। तो यस, जो चैलेंजेस रहे शुरू से वो ये रहे कि हमें अपना बिजनेस साथ में चलाना था पॉलिटिक्स के। तो समहाउ ठीक है, वी गेट डाउन थोड़ा सा फाइनेंशियली, थोड़ा सा उसमें हम कम हुए, लेकिन यस वी आर हैप्पी कि पॉलिटिकली हम लोग राइज हुए, और हम लोग राइज कर रहे हैं, और आगे भी और बहुत अच्छा होंगे। थैंक यू। Okay, Akash, I have another request for you. So now the portal for donating money, I believe you can do monthly through international also. I wanted that you have to have an option where we can donate to the volunteers only, directly, not just to the party fund, but to the volunteers. So that money should go to the volunteers, because they are the unsung heroes, and they are one of the main reasons we are where we are today. So if it's possible to open an option in the drop down that you say Maharashtra or you say Mumbai, you should say Mumbai volunteers also. You check out if it's possible, and hopefully we will have that, because I wanted to donate to the volunteers specifically. मैं थोड़ा सा समय लूंगा इस बात का जवाब देने के लिए। एक्चुअली क्या है कि एज पर माय नॉलेज, जितना मैंने सीखा है, बिकॉज आई डोंट थिंक वी कैन ओपन अप फॉर द वॉलंटियर्स। आई मीन, क्योंकि यस ऑफ कोर्स, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज है दैट कम्स अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनकी कुछ गाइडलाइंस है। जिस तरह से कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि खुद डोनेशन पे चल रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट डोनेट। क्यों? मतलब हम लोग डोनेशन ले तो सकते हैं, लेकिन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन वी कैन नॉट डोनेट। तो अब हम कहते हैं कि डोनेशन फॉर वॉलंटियर दैट विल नॉट बी पॉसिबल। लेकिन हाँ, जैसे हम कहते हैं कि सैलरी फॉर स्टाफ, तो ये थोड़ी अलग चीजें हैं। तो अगर हम सैलरी फॉर स्टाफ कहते हैं तो यस, हम लोग सैलरी देते हैं, और उसको हम अपने पेपर्स में दिखाते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी दिखाते हैं, और इनकम टैक्स को भी दिखाते हैं कि भाई ये सब हम सैलरी के लिए हमारा ये सब खर्चा है। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर एट आवर पोर्टल हमारे पास एज सच अभी तक तो कुछ नहीं है कि हम लोग उसमें डोनेशन मांग सके कि फॉर द सैलरी ऑफ स्टाफ, स्टाफ सैलरी। तो यस ऑफ कोर्स ये हम आगे बात कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, और मैं पंकज सर से जरूर इसको डिस्कस करूंगा। थैंक यू। Given looking forward from now, what are the party's short term, that means 3 months, 6 months,
and long term, that means 2 years, 3 years, what are our objectives, where are we going? Sir, first of all, we are going very good. You know, अभी तक हम बहुत अच्छा हम लोगों ने किया, आप सब ने मिलके, हम सब ने मिलके. सो एंड जो शॉर्ट टर्म अगर मैं बात करूं तो हम लोग अगर किसी चीज पे वी आर कीपिंग आई, तो हम लोग फिलहाल अभी बहुत ज्यादा पार्टी सीरियस है और लेके गोवा इलेक्शंस को. पंकज सर अभी 3 दिन पहले ही गोवा से आए हैं और वहाँ पे गोवा से, और गोवा को लेके पार्टी लुकिंग फॉर कि गोवा में हम लोगों को इस बार कुछ अच्छा करना है. लास्ट टाइम हम चूक गए थे वो करने से. गोवा अभी हम लोग देख रहे हैं. दिल्ली एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है अभी 1.5 साल बाद 2021 में, तो 2022 में सॉरी. तो एमसीडी को के लिए बहुत दुर्गेश पाठक, आप लोग सब जानते हैं कि दुर्गेश भाई पूरी तरह से लगे हुए हैं. रोज 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो. और उत्तर प्रदेश में वी आर ट्राइंग कि कुछ अगर अच्छा हो जाए. संजय सिंह जी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश को हम लोगों को टारगेट करना है कि वहाँ हम किस तरह से संगठन को, देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है सरकार बनाना, एक होता है सीट जीतना, और दूसरी चीज होती है क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत जरूरी है. अभी हमें सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश में टारगेट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बने, बूथ तक, वार्ड लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन बने. उत्तर प्रदेश को अभी देख रहे हैं, यूपी इलेक्शन है अभी, उसमें संजय भैया और पार्टी बहुत सीरियस है उसको लेके. ऑब्वियसली पंजाब वी आर ऑलरेडी इन अपोजिशन इन पंजाब. तो इस बार कोशिश है कि इस बार हम सरकार बनाए, जो लास्ट टाइम नहीं हो पाया था. इस टाइम हम लोग सरकार बनाए. एंड इस बार उत्तराखंड में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में हम लोगों का जो लीडरशिप भी डेवलप हो रहा है, वहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है वो भी डेवलप हो रहा है. और उत्तराखंड में मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए तो सीएम अनाउंस भी कर चुके हैं. अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस भी किया था मीडिया के आगे. तो इस बार उत्तराखंड में हम लोग सारी की सारी सीटें पर लड़ेंगे. तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो बहुत जल्दी जो होने वाला है वो है एमसीडी, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब एंड उत्तराखंड, 5 इलेक्शन. एंड द लॉन्ग टर्म, और एंड द लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जो सब इट्स आवर ड्रीम, जो आपका भी है हमारा भी है, हम सब चाहते हैं टू मेक अरविंद केजरीवाल, टू सी अरविंद केजरीवाल एज पीएम. एटलीस्ट पार्टी से जरूरी है, ऑब्वियसली सीएम जो पीएम कैंडिडेट है वो अरविंद केजरीवाल ही होंगे, लेकिन नेशनल लेवल पे जो हमने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक दिए, जो मॉडर्न स्कूल दिल्ली में बनाए हैं, बिजली पानी जैसे दिल्ली में फ्री है, उसी तरह से वही एक सपना है कि क्यों जब यहाँ पे अच्छा हो सकता है, जब यहाँ पे आधा सीएम, आधा भी नहीं कहूंगा 1/3, क्योंकि यहाँ पुलिस अलग है, सीएम अलग है, एलजी अलग है, होम मिनिस्ट्री अलग है. तो जब आधी पावर के साथ एक सीएम, एक आधी ताकतों के साथ एक सीएम इतना बड़ा बदलाव कर सकता है, तो सोचिए ऐसा ही व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, जब उसके हाथ में पूरी की पूरी ताकत होगी, जब उसको पूरी सब कुछ छूट होगी, पूरी पब्लिक का सपोर्ट होगा. तो लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पे जहां जहां आपका संगठन नहीं है, हम लोग वहां पे संगठन बनाए सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो वहां पे हम इलेक्शन भी लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे. तो ऑर्गेनाइज क्रिएटिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल स्टेट इज द लॉन्ग टर्म आवर प्लान, जिसके लिए हम लोग अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और काफी सारी जगह हम पार्टी अभी रजिस्टर करा रहे हैं. हरियाणा, यहाँ पे अभी वो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, क्योंकि कल 2-3 दिन पहले ही वो लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की टीम आई थी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिंबल इन देयर स्टेट. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हर स्टेट में पार्टी रजिस्टर हो, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो बूथ लेवल तक, और अपने एमएलए हो, हर जगह सरकार हो और देश में सरकार हो. Yeah, that was my next question actually. Who have we onboarded new? Which state and how? You did mention a few. So tell us which states are new, which are coming up, and getting ready to start. I believe as according to me, जो मुझे लगता है, according to me, हरियाणा will be the next. I mean, हरियाणा में जो हम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ये पास में है दिल्ली से, तो मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में हमें बहुत अच्छा हमारे लिए हो सकता है.
क्योंकि हरियाणा में काफी गुड़गांव वगैरह जितनी भी जगहें हैं या फरीदाबाद है या सोनीपत वगैरह, यहाँ पे दिल्ली का इन्फ्लुएंस बहुत है। दिल्ली में जो होता है उसका इम्पैक्ट वहां तक पड़ता है। अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, दिल्ली में पानी फ्री मिलता है, या दिल्ली में अच्छे स्कूल्स बनते हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो गुड़गांव में, सोनीपत में, पानीपत में, फरीदाबाद में, ये जितनी भी जगह है, इनफैक्ट करनाल वगैरह तक, काफी सारे हरियाणा के इलाके में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से अगला हरियाणा होना चाहिए जो हमें पिक करना चाहिए पार्टी को, और मुझे उसमें ज्यादा होप दिखती है। जैसे ठीक है, साउथ की जो स्टेट्स है हम लोग कोशिश कर सकते हैं, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में शायद हमारा अच्छा फ्यूचर रहेगा आने वाले टाइम में। Okay, anyone with questions? या हरियाणा में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? अभी वहाँ के जो इंचार्ज है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता है, जो हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं। तो सुशील गुप्ता जी इज लुकिंग आफ्टर हरियाणा। एंड कुछ दिन पहले हम लोगों ने वहाँ पे ये किसानों की रैली भी करी थी, द फार्मर्स प्रोटेस्ट किया था, एंड दैट वाज वेरी नाइस। और बहुत अच्छी सुशील गुप्ता जी के पास टीम है। उन्होंने हरियाणा को कुछ जोन्स में बांटा हुआ है, 14 कुछ काफी सारे जोन्स में बांटा हुआ है, और वहाँ पे जोन्स इंचार्ज बनाए हुए हैं। और फिर उसके नीचे फिर जिला, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर है, फिर विधानसभा का स्ट्रक्चर है। तो मैं ये तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि हरियाणा में हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, एग्जैक्ट नंबर कितना होगा, लेकिन जितना मैंने देखा है हरियाणा में बहुत अच्छा सुशील गुप्ता जी काम कर रहे हैं। और जितनी भी रैलीज होती है तो उसमें भीड़ बहुत होती है, लोग बहुत सारे होते हैं। और हरियाणा का जो है, हमारे पास पेपर्स पे डेटा बहुत है जो वॉलंटियर्स का है। आई एम नॉट श्योर कि कितने उसमें से एक्टिवली पार्टिसिपेट अभी आज भी कर रहे हैं, लेकिन जो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। और काफी सारे लोगों से सुशील गुप्ता जी अभी बात कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इतना ही बता पाऊंगा, हरियाणा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। ओके, थैंक यू। This is Sajal. Actually, the question is about NCD, right? So last time we couldn't make it. What are the chances that this time we will win NCD? Sir, actually what happened, let me tell you one thing. To be very very honest, like we are sitting in a family, we are talking in a family. So I think I should clarify one thing. जो मुझे लगता है, जो NCD का चुनाव होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है ना, इट्स मच ऑन द इंडिविजुअल स्पेस, लोकल लीडरशिप, क्योंकि बहुत छोटी जगह का चुनाव होता है। जैसे एक असेंबली में यू हैव 3 to 4 वार्ड, 1-2 में तो 5 ही है। तो वहाँ एक असेंबली को आप 3 या 4 पार्ट में बांटते हो, उसमें फिर कैंडिडेट सिलेक्शन होता है। तो शायद लास्ट टाइम ऐसा रहा, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा बिजली पानी वाली चीज थी, कहीं से वो नहीं कर पाई एमसीडी को लेकर, या तो हमारे पास 2 चीजें हो सकती है, शायद उस वक्त हमारे पास लोकल लीडरशिप नहीं थी। सो वी डिडंट हैव द लोकल फेसेस, जो लोकल लीडर्स होते हैं ना वार्ड लेवल के, मतलब जो छोटे छोटे मोहल्ले के लीडर्स होते हैं, जो एसोसिएशन से आरडब्ल्यूएस के लीडर्स होते हैं, तो शायद उस वक्त हमारे पास वो सब नहीं थे। तो एक ये मेरे ख्याल से हमारा एक ड्रॉबैक रहा होगा, तो इसलिए हम लोग एमसीडी में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि हम लोग शायद दिल्ली गवर्नेंस से या अरविंद केजरीवाल से वोट मांग रहे थे, तो शायद उनको ऐसा लगा हो कि मेयर तो अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे, तो क्योंकि वो तो सीएम है, शायद इसलिए पब्लिक ने नहीं लिया। अच्छा, इसमें एक द बीजेपी लास्ट टाइम बीजेपी प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्लेवर गेम। इन्होंने क्या किया, दैट मनोज तिवारी वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम ऑफ बीजेपी। उन्होंने एक नारा दिया कि नए चेहरे और नई उड़ान, नया काम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि देखिए 15 साल से जितने भी हमारे काउंसलर्स बैठे हैं, ये सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं और हम लोग इसको मानते हैं। और उस टाइम पे उन्होंने वो सारे के और उन्होंने ये कहा कि अब हम ये पुराने चेहरे हटा के और नए चेहरे लेके आएंगे। तो वो नए चेहरे लेके भी आए, सबकी टिकट काटी, उन्होंने काउंसलर्स को छाप दिया। तो ऐसा हो सकता है पब्लिक ने सोचा हो कि भाई इन लोगों को दोबारा मौका देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं।
कि हम लोग क्यों पिछली बार वी डिडंट मेक इट, लेकिन इस बार जो है, इस बार शायद अलग है, क्योंकि इस बार जो है पब्लिक ने ये देख लिया है कि ये जो बीजेपी के जो पुराने वाले थे ना, ये जो नए वाले आए, ये बीजेपी के पुराने वालों से भी 2 कदम आगे हैं करप्शन में, क्योंकि इन लोगों ने पूरी की पूरी सो अब ये पब्लिक ने समझ लिया है कि भाई बीजेपी एमसीडी में अगर रहेगी तो इसी तरह से ही दिल्ली में सब कुछ गड़बड़ रहेगा, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, नालियां साफ नहीं होंगी, कचरा बड़ा रहेगा। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गेश पाठक इज लुकिंग आफ्टर एमसीडी, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे उनको बहुत विश्वास है कि अगर दुर्गेश भाई एमसीडी को देख रहे हैं, ही इज कोऑर्डिनेटिंग द एमसीडी इलेक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है दुर्गेश भाई अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है कुछ हमारे साथ। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम एमसीडी हमने लाइटली ले लिया था, हमें लगा था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल, हम लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, और ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग हार गए। हो सकता है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जब कुछ चीज हो जाती है तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है, कभी भी एक फैक्टर नहीं होता है किसी भी हार के लिए, किसी भी जीत के लिए, तो काफी सारे फैक्टर्स होंगे। तो मेरे ख्याल से शायद हमारे कुछ एमएलएस का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पार्टी की टॉप लीडरशिप या सभी लीडर्स का, लेकिन यस, कुछ लीडर्स का या कुछ एमएलएस का या कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, जो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी छोड़ी और हम लोग उस उम्मीद से नहीं जीत पाए जितना हमें जीतना चाहिए था। और भी चीजें थी। कैसे, मैं जानना चाहूंगा आपको और क्या लगता है, सो दैट इस बार हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्या और रहा होगा? और चीजें थी, आई थिंक एक अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो स्टेटमेंट थी आर्मी के ऊपर उस टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर दैट, ये उसी टाइम की बात है, एमसीडी से 3-4 महीने की पहले की बात है। और वो स्टेटमेंट सर्जिकल स्ट्राइक का वो जो था, हाँ, कि सबूत आप वो था, और वो बहुत ही ये होता है कि आपको पता है कि बीजेपी की कितना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा मशीनरी है, और उनको थोड़ा तरीके से पेश कर दिया। हाँ, उनको 2 सेकंड नहीं लगी उसको वो करने में, फ्लिप करने में। और अरविंद केजरीवाल ही यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ स्टेटमेंट आल्सो, तो उससे भी लोग वो थे कि वो हर he used to give statement about each and everything happening in other states, तो लोगों को उसका भी थोड़ा सा था। तो मेरे हिसाब से ये थी 2-3 चीजें which we have removed now, और हम काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी जब भी बात होती है पॉजिटिव चीजों के बारे में होती है, राइट। तो दिस इज गुड। और हम अगर ये लोग फिर से कुछ ना कुछ जाल फेंकेंगे, जैसे अब की बार इन्होंने किया था दिल्ली चुनाव में, एमसीडी से पहले कुछ ना कुछ ये दिल्ली राइट्स का लेके आएंगे, और कुछ ना कुछ करेंगे एमसीडी से पहले, एमसीडी जीतने के लिए। तो हमें वही करना है, इनके उससे बचना है। हाँ बस, तो हम जीत ही जाएंगे। थोड़ा पॉजिटिव कैंपेन करना है, और देश और स्वच्छ भारत अभियान में दिल्ली एमसीडी इज लाइक ऑन 41 and 43 आउट ऑफ 45 सिटीज में अपनी दिल्ली है जो एमसीडीज, मतलब सबसे निचले पायदान में है, इतनी गंदगी है। तो वो उसको अगर हम लेके बहुत खराब है, हाँ, उसको लेके जाएंगे तो आई थिंक पीपल वुड वोट फॉर अस। यस, डेफिनेटली, यू आर राइट, यू आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी तरफ से एक सवाल है। मैं प्रशांत हूँ, स्विट्जरलैंड से वॉलंटियर। हाय प्रशांत जी। या हाय आकाश। सो मतलब एमसीडी चुनाव में और फिर जो विधानसभा चुनाव होते हैं, इनमें सबसे बड़ा फर्क होता है वोटर टर्नआउट का। एमसीडी चुनाव पे वोटर उतनी तादाद में बाहर नहीं निकलते घर से, जितने मतलब विधानसभा या फिर मतलब प्रधानमंत्री चुनने वाले चुनाव के लिए करते हैं। तो मतलब वोटर टर्नआउट को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब, और वोटर रजिस्ट्रेशन को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल सही आपने प्रशांत जी, ये एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह से स्टेट का इलेक्शन होता है या नेशनल इलेक्शन होता है, उतना एमसीडी में दिक्कत है। क्योंकि फिर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, क्या होता है कि जब स्टेट का होता है तो सभी के पास एक फेस होता है, और एक फेस को जिताने के लिए
जैसे अगर दिल्ली में वोटिंग होती है या हो रही है जो 2-3 बार से, वो क्यों हो रही है? वो इस तरह से हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक एक्साइटमेंट है सब में, एक वोटर्स में ना एक एक्साइटमेंट है, या कुछ करना है, उनको मालूम है, उनको ऐसा लगता है कि उनके वोट से कुछ होने वाला है। उनका अगर वो वोट देंगे तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, या अगर वो वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक साइकोलॉजिकल एक जो एक्साइटमेंट होती है उन लोगों के दिमाग में, वोटर्स के दिमाग में, कि उनको एक फेस दिख रहा होता है और उनको उस फेस के लिए पुश करना होता है, उसको वोट देना होता है, तो इसीलिए ज्यादा लोग निकल के आते हैं और उनकी चर्चा भी होती है। जैसे वोटिंग परसेंटेज हमने देखा ज्यादातर तब भी बढ़ता है जब बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया होता है, जब मीडिया कवरेज बहुत मिल रही होती है, जब हर चाय की दुकान पे या गली मोहल्लों में लोग उसकी बातें कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन इलेक्शंस की लोग बातें भी करते हैं, लेकिन जो अपने जो छोटे इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो एमसीडी के हों या बीएमसी के बॉम्बे वगैरह में हो या कर्नाटका में वगैरह में हो, बीएमसी के बेंगलोर के, वहां पे शायद लोगों के पास कोई एक वजह नहीं होती, मतलब शायद वो ध्यान नहीं देते कि किसको मेयर बनाना है। जैसे दिल्ली में 3 मेयर बनते हैं, तो इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम लास्ट चुनाव में कि कौन हमारे मेयर कैंडिडेट थे या कौन मेयर कैंडिडेट होता है। तो देयर इज नथिंग लाइक, उसमें कोई फेस नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद वो एक वजह है सबसे बड़ी, जिसमें ये वोटिंग परसेंटेज जो उतना टर्नआउट नहीं होता है। और अगर हमारी बात करें, पार्टी की बात करें, तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना, पब्लिक को अवेयर करना कि ये वाले इलेक्शंस भी उतने ही जरूरी हैं, और ये वाले इलेक्शंस भी आपके उतने ही जरूरी हैं जितने कि आपके स्टेट या नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि इससे उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर आप अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे तो आगे वो आपकी बात रख पाएगा। सो जब अगर वो लोग ये समझेंगे कि हाँ यार, हम सबके बीच में से अगर हम किसी एक को चुनते हैं जो हमारी बात आगे रख सके, मेयर तक रख सके, मेयर उसको एमएलए तक ले जा सके, मिनिस्टर्स तक ले जा सके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो वोटर टर्नआउट अगर बढ़ाने की बात है तो अवेयरनेस उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। और लोकल लीडर, जो लोकल एमएलए हैं या जितने भी हर पॉलिटिकल पार्टी के भी, वोटर अवेयरनेस, जो वोटर टर्नआउट अगर बढ़ाना है तो फिर केवल एक पार्टी के करने से नहीं होगा। तो वो तो एक जनरल अवेयरनेस होने चाहिए, तो वो तो फिर सभी को करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को भी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बीजेपी के वॉलंटियर्स को भी अवेयर करना पड़ेगा, कांग्रेस वालों को भी अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वोटर परसेंटेज बढ़ेगी तो सभी का फायदा है, और हमारी कंट्री का फायदा है, हमारे शहर का फायदा, हमारे वार्ड, हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का फायदा है। तो अगर सब लोग इतना पॉजिटिव होके अगर ये सब सोचे हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट वोटर परसेंटेज बढ़ाने में अगर सब लोग साथ आ जाएं, तो वो मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर प्लान होगा वोटर परसेंटेज बढ़ाने का। बाकी यस, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, एज आम आदमी पार्टी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो तो जरूर वोट डालने जाएं। और जनरली ऐसा होता भी, आप लोगों ने शायद इंडियन इलेक्शंस में देखा होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, तो दे विल मेक श्योर कि हमारे वो सपोर्टर्स के घर में से पूरे का पूरा वोट डल गए। राइट। अगर कोई लास्टिंग चेंज लाना है हमें, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने, जैसे मिनिस्ट्रियल फिगर्स है या फिर एमएलए फिगर्स है, हमने इनको बहुत पब्लिसिटी देके, प्रेस कॉन्फ्रेंस देके उनको एक तरह से हाउस होल्ड नेम्स बनाने की कोशिश करी है। अगर किसी तरह से हम एमसीडी जीत जाते हैं, और तो हम तीनों मेयरों को भी अगर वैसे ही हाउस होल्ड नेम्स बना दे, उनको फ्रीक्वेंट पब्लिसिटी देके, उनको एज लीडर्स प्रॉप अप करके, उनको उनका पब्लिक फेस हर जगह दिखे, उनकी कही हुई बातें सबको सुनाई दे, तो दिस विल मेक अ लास्टिंग चेंज फॉर म्युनिसिपल इलेक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे लगता है। यस, बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पब्लिक का इंटरेस्ट बनेगा, अगर उसकी बात होगी, पब्लिक जब पहचानेगी तो अपने आप ही वो अवेयर होगी कि भाई ये भी बहुत जरूरी चीज है। Yeah, somebody else had a question. Go ahead. Yeah, Arun, I have a question. This is Jashwant. Go ahead, Jashwant. थोड़ा आप NACH के बारे में बताएंगे हमें? So basically, NACH is nothing but donation mode, another donation mode of donation. जैसे कि डोनेशन कैश में, चेक में, थ्रू द क्रेडिट कार्ड एंड वॉलेट्स के थ्रू हम लोग लेते हैं, इसी तरह से एक चीज होती है। इसका NACH की फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस।
तो लेकिन ये बिल्कुल सेम है, एक बहुत ही फेमिलियर वर्ड है जो आप लोगों ने सुना होगा, जो बैंक का वर्ड है, ईसीएस जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर होता है। ईसीएस हम लोग सब जानते हैं, मंथली ईसीएस जिसको हम बोलते हैं, सेम बिल्कुल एज इट इज ही एनएसीएच होता है। ये हम मुझे बारीकी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं पता वेदर वो लोग इसके थ्रू डोनेशन लेती है नहीं लेती है, लेकिन काफी टाइम से हम लोग एनएसीएच के थ्रू, एनएसीएच फॉर्म्स के थ्रू डोनेशन ले रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इसमें क्या होता है कि एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है बैंक का, जो कि बैंक की तरफ से ही होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है। उसमें जैसे हम एक चेक में लिखते हैं ना, पे टू आम आदमी पार्टी, अमाउंट, द चेक डेट, सिग्नेचर, और वो बेसिक चीजें, बिल्कुल उसी तरह का फॉर्म है जिसमें आपको अपना किसको आप दे रहे हैं, ऑब्वियसली पे का नाम लिखना होगा, पे टू आम आदमी पार्टी, और आपका बैंक अकाउंट नंबर, आप अपने अकाउंट की छोटी सी डिटेल में जरूर, मैं जशवंत भाई आपको पीडीएफ दूंगा, आप वो सबको शेयर कर दीजिएगा, है ना। ठीक है। एक पीडीएफ में फॉर्म का आपको दिखाना चाहूंगा। तो उसमें एक फॉर्म फिल करके, अगर आप आम आदमी पार्टी को उसका सपोज 100 रुपीज, इसमें मिनिमम डोनेशन अमाउंट 100 होता है, 100 से नीचे ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो अगर आप 100 रुपीज का फॉर्म फिल करके यहाँ पे पार्टी ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, फिर वो हम अपने बैंक में भेजते हैं, तो ऑटोमेटिकली एवरी मंथ, सपोज आज 8 नवंबर 2020 से लेके 8 नवंबर 2021 तक के लिए मैंने वो फॉर्म भरा। उसमें वी हैव अ डेट ऑप्शन, फ्रॉम एंड टू, राइट। तो उसमें अगर मैंने भरा, तो मैंने आज से लेके अगले 1 साल तक अगर 100 रुपए का वो फॉर्म भर दिया, तो एवरी मंथ वो 100 रुपए मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट के आम आदमी पार्टी के अकाउंट में आ जाएंगे, और ऑटोमेटिकली ही मेरे को उस महीने की मेरे को रिसिप्ट मिल जाएगी फ्रॉम आम आदमी पार्टी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक हमारा मोड है, जो इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती है। इसमें एक तो हम लोगों का टाइम सेव होता है, बार बार आपको हम लोगों को किसी से डोनेशन मांगनी नहीं पड़ती है। हमने उनको बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप 1000 रुपए हर महीना दीजिए, वो एक बार में वो एनएसएस फॉर्म भर देंगे, तो हर महीने उनके अकाउंट से 1000 रुपए कट के हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो एक तो हमारी एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होती, कंज्यूम नहीं होती, क्योंकि हमें बार बार मांगना नहीं पड़ता। दूसरा, जो डोनर है उसको बार बार वेबसाइट पे जाके वो सब कुछ फॉर्म फिल करके और डोनेशन देने के लिए बैठना नहीं पड़ता। उसने एक बार फॉर्म भर दिया, उसको अपने आप हर महीने डोनेट पैसा कटेगा और हर महीने उसको उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी। तो यही है बेसिकली मंथली डोनेशन प्लान है हमारा। उसी को एनएसीएच कहा जाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये इंडिया में चलता है ना एनएसीएच प्रोसेस, वो यूएस या ओवरसीज में शायद ऐसा वाला पेपर डॉक्यूमेंट वाला ऐसा कुछ नहीं है, शायद ऑनलाइन ऑटोमेटिक डोनेशन है शायद। वहाँ की गवर्नमेंट का आई हैव नो आइडिया कि वहाँ ये सब ये डिफर करता होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो वहाँ की गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, यू आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर, और आप इंडियन बैंक से वहाँ से डोनेट कर रहे हो, तो एनएसएस फॉर्म आप भर सकते हैं, जैसे आप लोग वैसे डोनेट करते हैं, तो उसी तरह से आप एनएसएस फॉर्म भर के भी डोनेट कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज लॉन्ग एज कि आप लोग इंडियन सिटीजन है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो आप एनएसएस से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। Okay, anyone else? Yeah. Hi Prashant, this is Sachin here. I have a question. Go ahead, Please Sachin. Yeah, hi Akash. Welcome to Hi Aapka Radio. Sachin ji, how are you? Yeah, I'm good, thank you. Thank you, it's a pleasure. I'm connected from Oslo, Norway. I have 2 questions. One is a political question and another is related to your profession and your video blogging. तो मैं पहले वीडियो ब्लॉगिंग पे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप ये पार्टी ओरिएंटेड वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं और एक इंडिपेंडेंट वीडियो ब्लॉगर में और पार्टी ओरिएंटेड वीडियो ब्लॉगर में मेन क्या डिफरेंस है, मतलब क्या चैलेंज आता है? क्या ऐसा कुछ होता है कि पार्टी ओरिएंटेड वीडियो ब्लॉगर के हिट बड़े लिमिटेड होते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स सिर्फ पार्टी को बिलोंग करते हैं और वही उनको मिनट्स देते हैं यूट्यूब पे और उनकी रीच लिमिटेड होती है, या और भी कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हो क्या?
देखिए मैं बहुत ज्यादा अभी तक इस तरह से मैं इसको ये तो नहीं अभी तक द जर्नी सो फार मुझे इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस वाली तो अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने बात कही ना वो बिल्कुल सही है। देखिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी इंसान किसी भी आपको रोड पे दो आदमी बात कर रहे हो और एक आदमी आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर ये कह रहा हो कि यार अरविंद केजरीवाल पता बहुत बढ़िया काम करते हैं, अरे पता है बिजली का बिल नहीं आ रहा, अरे ज्यादा पता पानी का बिल नहीं आ रहा, वो टोपी लगा के अगर कोई बोले और आप उसको सुन गए कि टोपी पहन के आदमी ये सब बात कर रहा है। अच्छा अब जस्ट इमेजिन के बिना टोपी लगाए कोई एक आदमी बात कर रहा है कि अरे अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे सीएम है, पता है अरविंद केजरीवाल के उसमें ना पानी में फ्री मिलता है, बिजली का बिल भी नहीं आता, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो जब टोपी वाला बात करता है तो हम सोचते हैं अच्छा वो पार्टी वाला है, ठीक है तारीफ करा, होगा कि नहीं होगा उसका तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा केजरीवाल। लेकिन जब एक नॉर्मल आदमी बात करता है तो आप दो लोगों को आप भी बताएंगे अरे नहीं यार ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहा है, वहां मैंने कुछ किसी को सुना था और वो किसी को बता रहा था, मतलब एक नॉर्मल पर्सन था वो अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा था। तो आपके माइंड में ये होगा कि जो जनरल पब्लिक है वो अब अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने लगी है। तो सेम ही हमारा वीडियो वाली चीज में है। कुछ वीडियोस ऐसे हुए जो मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे ये एडवाइस किया गया बिकॉज उसमें मेरी गलती ये हुई थी क्योंकि मुझे सब शायद इतनी समझ नहीं थी उसमें। मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने पीछे पार्टी का बैकग्राउंड यूज किया था। तो जब आप पीछे पार्टी का बैकग्राउंड यूज करते हैं तो जो आपकी रीच होती है, जो आपको सुनने वाले हैं, जो आपकी बात पे ध्यान देने वाले हैं, वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। वो लोग हो जाते हैं जो सिर्फ आपके सिंपैथाइजर है या आपके सपोर्टर्स है। जनरल पब्लिक आपको फिर लेती है कि अरे भाई कोई पार्टी का आदमी बोल रहा है, ठीक है पार्टी का आदमी बोल रहा है तो अपनी पार्टी की तारीफ ही करेगा ना, पता नहीं सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लेकिन जब आप पार्टी का लोगो यूज नहीं करते हैं, जब आप ऐसे ही पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, अपने आप को पार्टी का वॉलंटियर नहीं बताते, तो फिर तो आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो फिर आप वो उस जोन से बाहर निकल जाते हैं, पार्टी सपोर्टर्स और पार्टी सिंपैथाइजर्स के जोन से बाहर निकल जाते हैं। तो जनरल पब्लिक बोलती है कि हाँ यार ये कोई नॉर्मल बंदा है और अपने व्यूज रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है तो इन दोनों में ये फर्क है, यू राइट, कि अगर हम लोग पार्टी जब भी वीडियो बनाएं और दोनों अलग अलग कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यस अगर हम पार्टी का लोगो यूज नहीं करके पार्टी की बात करते हैं, गवर्नमेंट की अच्छी कामों की बात करते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है, आपका वो जो ऑडियंस का ऑरा है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। राइट, थैंक यू। एंड एक और मेरा छोटा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इफ यू हैव दैट इंफॉर्मेशन देन प्लीज डू शेयर विद अस। ये बिहार में और एमपी में जो बाई इलेक्शन है और बिहार का जो असेंबली इलेक्शन है, इसका कुछ पता नहीं चला कि आम आदमी पार्टी ने फाइनली कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन पहले कुछ टाइम पहले आपके रेडियो में एमपी के कोऑर्डिनेटर भी आए थे, बिहार के भी आए थे और वो बड़े एनर्जेटिक लग रहे थे उनकी बातों से, लेकिन सडनली ओवरनाइट पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ एकदम शांत पड़ गया। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट? मैं बिल्कुल 100% तो मुझे इंफॉर्मेशन दोनों राज्यों की नहीं है, दोनों स्टेट्स की नहीं है। लेकिन अगर एक जर्नल जो मैं समझा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस ऑफिस में, हेड ऑफिस में ही होता हूँ पूरे दिन, तो शायद मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, कुछ सुनता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ चेंज हुआ, ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली देखिए हमने कोशिश करी थी कि हम बिहार में लड़ेंगे, बिल्कुल जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हरियाणा में लड़ेंगे। लेकिन अभी आगे अब हम कोशिश उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हम वहां लड़ने के लिए रेडी हैं। तो बिहार में भी उस वक्त, जिस वक्त हमारे दोस्त को कोऑर्डिनेटर आए होंगे, चाहे सुशील भाई आए होंगे या कोई और आए होंगे, तो अब जो भी आए थे, अगर उन्होंने उस वक्त ये कहा होगा तो ऑब्वियसली उस वक्त वो तैयारी में होंगे। जैसे अभी हम यूपी की तैयारी में है, अभी हम उत्तराखंड की तैयारी में है, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। तो मुझे लगता है बिहार का भी शायद कुछ ऐसे, बिहार का भी ऐसे ही रहा कि हमने कोशिश करी, हमने मेहनत करी, लेकिन शायद पार्टी को ये रियलाइज हुआ कि अभी हम लोग इस वक्त हम लोग शायद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर पार्टी ने फिर वो डिसीजन नहीं लिया, पीएसी जो ने हमारी। Yeah, okay. Thank you. Hi, Arun. Hi, Akash. This is Alok from New Jersey. Hi. So मेरा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था पार्टी की नेशनल स्ट्रेटेजी पे, उसी पे ही बेस्ड है कि
अभी फिलहाल जो मतलब स्ट्रेटेजी दिखती है जिस तरीके से, वो ऐसा दिखता है कि कुछ सब जगह मतलब हमारे जो है रीजनल लीडर्स, फॉर एग्जांपल यूपी में संजय सिंह हो गए, मे बी बेंगलोर में पृथ्वी, एंड गोवा, हर जगह रीजनल लीडर्स हैं जो मतलब वहाँ पे ग्रोथ का ख्याल रखते हैं, पार्टी ग्रोथ का। तो और वो जो कि अच्छी चीज भी है, क्योंकि स्वराज मॉडल है, उसके हिसाब से वहाँ के लोगों को खुद आगे पार्टी को बढ़ाने की जरूरत होनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इस चीज में होता क्या है कि एक जगह तो जैसे लीडर जो है संजय सिंह, ही इज एमपी, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, तो फिर भी हम काफी एक्शन देखते हैं काफी सारी जगहों में। जैसे अभी बिहार की बात हुई, झारखंड की बात हुई, वहाँ पे एक्शन मतलब कुछ होता भी होगा तो कुछ पता नहीं चलता और फिज आउट हो जाता है थोड़े टाइम में। इवन उत्तराखंड में भी हम कह रहे हैं, बट कोई क्रेडिबल एक्शन ग्राउंड पे दिखता नहीं है। तो मेरी तो थिंकिंग ये थी कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या कि जैसे जो एक जगह की जो एनर्जी हमें आती है, एनर्जी रहे सब में, और इसका पीछे मेन रीजन मेरा क्वेश्चन पूछने का ये भी है कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है, जैसे अरविंद केजरीवाल है, वो दिल्ली में बिजी रहते हैं, तो ये सिनर्जी हम कैसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं उल्टे से जवाब दूंगा। जो आपका जो लास्ट आपकी लाइन थी, पहले उसका मैं जवाब दे देता हूँ। तो जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो किस तरह से मेंटेन करती है, क्योंकि वो मैं बेहतर जानता हूँ, तो इसलिए मैं उससे शुरू करता हूँ। देखिए, टॉप लीडरशिप ने क्या किया हुआ है हम लोगों के, आप तो सब जानते होंगे कि जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कई स्टेट्स को लिया हुआ है। जैसे संजय सिंह जी के पास उत्तर प्रदेश है, लेकिन बिहार के जो प्रभारी थे, बिहार के जो ऑब्जर्वर कहिए या कोऑर्डिनेटर कहिए या इंचार्ज कहिए, वो भी संजय भैया थे। तो जो यहाँ पे जितनी भी टॉप लीडरशिप है, जैसे पंकज गुप्ता जी के पास पहले गोवा था और महाराष्ट्र था, कर्नाटका था, कुछ ऐसे ही अभी दुर्गेश पाठक के पास महाराष्ट्र है। तो जितनी भी हमारे पीएससी की जो टॉप लीडरशिप है, जिसको नेशनल एग्जीक्यूटिव अगर हम कह लें, तो जो भी हमारे पॉपुलर फेसेस हैं, उन सब ने आपस में कुछ कुछ स्टेट्स की जिम्मेदारी बांटी हुई है। तो और वो डायरेक्टली वो पीएससी में जो उसकी चर्चा होती है, अरविंद केजरीवाल होते हैं, वहाँ सभी लोग होते हैं। तो आपने पूछा कि अरविंद केजरीवाल उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो जो भी टॉप लीडरशिप है वो वहाँ पे इंचार्ज बने हुए हैं और इंचार्ज ही उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और वो सब करते हैं। तो इस तरह से वो मैनेज होता है। आपका दूसरा सवाल क्या था? सॉरी, मैं भूल गया। हाँ, कि तो जैसे कि ये सिनर्जी आपस में, जैसे एक जगह ग्रोथ अच्छी हो रही है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं मिल रहा कई बार, तो ये जो अगर सिनर्जी हो आपस में, तो फिर क्या होता है कि एक जगह की पॉजिटिव एनर्जी दूसरी जगह भी कई बार हेल्प कर देती है। तो ये चीज जो है पीएससी में के थ्रू, पीएससी का हमको आइडिया नहीं है, तो कैसे कर रहे हैं, मतलब इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि ना, जैसा आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, जो कि लोकल लीडरशिप है। तो लोकल लीडरशिप को निकलना पड़ेगा। देखिए, आप तेलंगाना में कब चुनाव लड़ पाएंगे, आप आंध्र प्रदेश में कब चुनाव लड़ पाएंगे, या बिहार में चुनाव कब लड़ पाएंगे? आप जब वहां लड़ पाएंगे, वहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कितनी भी अच्छे बहुमत से जीते, चाहे 70 में से 70 सीटें जीत जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि अब वो बिहार में भी हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो दिल्ली के सीएम रहेंगे। तो लोग तो ये देखना चाहते हैं कि भाई बिहार के लिए आपके पास कौन है, भाई उनकी विधानसभा में आपका कैंडिडेट कौन है, भाई उनकी लोकसभा में आपका कैंडिडेट कौन है, उनकी स्टेट में आपका सीएम कैंडिडेट कौन है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो आपने बड़ी सही बात कही कि टॉप जो लोकल लीडरशिप है उसका निकलना बहुत जरूरी है। जब तक लोकल लीडरशिप नहीं निकलेगी तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वहाँ के इंचार्ज सेम है, इंचार्ज संजय सिंह ही है, वहाँ पे इंचार्ज सेम है, लेकिन वहाँ पे क्या फर्क है? वहाँ पे फर्क है लोकल लीडरशिप का। मतलब ये है कि बिहार में हमें लोकल लीडरशिप नहीं मिल पाई जो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन यूपी में हमें एक होप दिख रही है, क्योंकि कुछ हमें लोकल लीडर्स मिल रहे हैं, या जो हमारे लीडर्स थे वो जो हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो अब लीडर बनने लगे हैं। तो सारा सब कुछ जो डिपेंड करता है ना किसी भी स्टेट का, अगर मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है, कोई भी मुझसे किसी भी स्टेट के बारे में पूछता है तो वहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ का लोकल लीडरशिप। क्या वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स में लीडरशिप आई है? क्या हमारे पास वहाँ पे कोई लोकल फेस है? जब तक लोकल फेस नहीं होगा, जब तक हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे लीडर्स नहीं बनेंगे, तब तक हम किसी भी स्टेट में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे।
तो सब पूरा का पूरा फैक्टर लोकल लीडरशिप पे जो जैसा आपने कहा। जी जी हाँ, शायद हमें को पेशेंस थोड़ा ज्यादा रखने की जरूरत है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और हमारा स्ट्रक्चर बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी बात सही है। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, हम कभी इसको मैं खत्म करता हूँ इसी बात में। जैसे हम पंजाब में क्या हुआ था, मैं अगर अपनी बात करूँ एज ए इंडिविजुअल, आई वॉज थिंकिंग कि यार हम तो जब भी चुनाव लड़ते हैं हम लोग तो मतलब बहुत बहुत रिकॉर्ड बना देते हैं। तो आई थिंक मैं इसलिए पंजाब में सोचता था कि 100 से ज्यादा सीट आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग तो हर जगह कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब हम इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो शायद अब ये समझ आ रहा है कि हर चीज में एक वक्त लगता है और हर चीज को वक्त की जरूरत होती है। तो धीरे धीरे वक्त के साथ हम लोग जैसे धीरे धीरे पंजाब में स्टेब्लिश हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, उत्तराखंड यूपी में हो रहे हैं, हम लोग जरूर बिहार में भी होंगे और बाकी स्टेट में भी होंगे, लेकिन वक्त लगेगा और हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। थैंक्स आकाश, थैंक यू सो मच। ओके, एनीवन एल्स? एक आपने बात बहुत अच्छी कही आकाश जी कि आप नए चेहरे को लाना चाहते हैं और लोकल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई ऑल्सो एग्री बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी है कि अगर आप लोकल स्पेशली अगर और किसी पार्टी से लेके आते हैं तो फिर दे कैन डिस्ट्रॉय द पार्टी ऑल्सो। जैसे वो कांग्रेस के कोई लेके आएंगे तो बड़ी जुम से वॉलंटियर्स भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, लेकिन बाद में वो तोड़ भी सकते हैं उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो आए थे। तो आप कैसे स्क्रूटिनाइज करेंगे कि अच्छे लोग आएंगे और बुरे लोग नहीं आएंगे? देखिए सर, दरवाजे भी खुले रखने पड़ेंगे, मतलब आपको यू हैव टू ओपन ऑल साइड्स। क्योंकि जब जैसे अरविंद सर ने आपने भी सुना होगा, अरविंद सर हमेशा एक बात बोलते थे कि ये जो पार्टी है ये किसी एक की नहीं है भाई। ऐसा नहीं था कि किसी फैमिली ने शुरू करी और आगे उसकी विरासत में चलेगी। एक अपील थी जिसमें ये कहा गया था कि देश के जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, देश की पॉलिटिक्स बहुत खराब हो गई, पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, देश में सुधार होना चाहिए, उनको एक साथ आना पड़ेगा। तो अच्छे लोग तो कांग्रेस में भी हैं। हम ये ना मान के चले कभी भी कि शायद जो कांग्रेस में जितने भी लोग हैं सब खराब है, या बीजेपी में जितने भी लोग हैं सब खराब है। लेकिन अगर उनमें से अब तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो जो उनकी सहूलियत थी, जहां वो बेटर फील कर रहे थे, जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच हो रहा था, वहां वो लोग अपना तन मन धन दे रहे थे। लेकिन अब अगर उस पार्टी के अच्छे लोग जो कि एक अच्छी सोच रखते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से आपकी और मेरी तरह जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए हमें गेट तो ओपन करना ही पड़ेगा और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि जितने भी अच्छे लोग हैं सबको आना पड़ेगा। तो अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ अच्छा हमारे पास अगर अच्छे लोग आते हैं तो मुझे लगता है उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इसमें रिस्क फैक्टर है, तो सर हमें ये भी याद होना चाहिए जो कि कपिल मिश्रा है। कपिल मिश्रा तो किसी और पार्टी से नहीं आए थे, वो तो हमारे साथ ही जुड़े थे, है ना। ऐसा वो किसी और पार्टी में कोई बहुत बड़े नेता तो नहीं थे। कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़े। इस आम आदमी पार्टी ने, आपने और हम सब ने मिलके उनको एमएलए बनाया, उनको हमने मंत्री बनाया। लेकिन आज वही कपिल मिश्रा है जो हम सबको टारगेट करते हैं, हम आपको भी टारगेट करते हैं, हमें हर एक इंडिविजुअल वॉलंटियर को गलत बोल देते हैं। तो रिस्क फैक्टर तो सर सभी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी चिंता जायज है। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा सर, गेट तो खोलने ही पड़ेंगे, है ना। पाँव में मोच आ जाने के डर से हम लोग दौड़ना तो नहीं छोड़ सकते। तो हाँ, दौड़ना तो पड़ेगा सर, अच्छे लोगों को शामिल तो करना पड़ेगा। अब अगर लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर मैं हमेशा कभी भी कोई मुझे कपिल मिश्रा के लिए या किसी के लिए भी बोलता है तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूँ कि देखिए, गलत और सही आदमी हर पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं, बीजेपी में भी हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी में भी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपको उसका पता लगता है, अब पार्टी उस पर एक्शन लेती है या उसको डिफेंड करती है, तब वहां पे पार्टी का कैरेक्टर पता लगता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर यहाँ के मंत्री एमएलए थे, जब इन पर रेप केस लगा तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने उनको बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तो ये होता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के किसी एक काउंसलर पे भी, आप सोचिए, अभी उनको प्रूफ नहीं हुआ, मैं ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूँ, आप सब पहचानते होंगे उनको, मैं ताहिर भाई की बात कर रहा हूँ। ताहिर भाई पे अब तक जुल्म, दंगे कराने का
केवल आरोप लगा है, उनको फाइनल नहीं हुआ है कि उन्होंने किया है, वो दोषी नहीं हुए। लेकिन जैसे ही क्योंकि निष्पक्ष जांच हो, तुरंत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पीएसी ने उनको तुरंत जो मेंबरशिप है उससे एकदम उनको बर्खास्त कर दिया, उन्होंने इमीडिएटली पार्टी से निकाल दिया। तो ये एक फर्क है। तो हम फिल्टर तो नहीं लगा सकते, हम एक अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं, सब पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कल को मैं भी कुछ गलत करता हूँ तो मुझे इतना विश्वास है कि जो मेरी लीडरशिप है वो मुझे 1 मिनट भी गलत आदमी को टिकने नहीं देगी पार्टी में, और बिना किसी भी हिचक के वो एकदम खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको शायद याद होगा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जानना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा जब जो हमारे एक्स मिनिस्टर रहे हैं, है ना, ये मीडिया मैन से थे, तो जब आसिम अहमद खान, आप लोगों को याद होगा, जिनकी वो करप्शन की आई थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने खुद मीडिया को बुलाया, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई देखो, हमारे एक ये विधायक है जिसको हमने मंत्री बनाया हुआ है और इसकी ना रिश्वत मांगते हुए हमें एक सीडी मिली है, वो हम सीबीआई को सौंप रहे हैं, और जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इस आदमी को अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। तो आसिम अहमद खान को अगले दिन ही खड़ा कर दिया था पार्टी से बाहर निकाल के, खुद ही मीडिया को बुला के। तो फर्क ये है। लेकिन इसकी जगह अगर बीजेपी होती, कांग्रेस होती, तो वो सीबीआई को पैसे देती, सारे की सारी वकीलों को खरीदने की कोशिश करती, जजेस को खरीदने की कोशिश करती, जैसे कि वो लोग हमेशा करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंट्री से फिल्टर तो नहीं पॉसिबल है, केवल भरोसा किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है, और डेफिनेटली अगर कोई आपके अंदर रहते कुछ गलत करता है तो फिर उसको बर्दाश्त ना किया जाए। तो यही मुझे ऐसा लगता है ये खास बात है आम आदमी पार्टी में। So, who are the new and upcoming young leaders, both men and women? Young leader means we have Durgesh Pathak, आप सब जानते हैं। तो he is the most, जिसे मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अगर मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है तो सबसे ज्यादा दुर्गेश भैया पर है। तो दुर्गेश पाठक जो एक बहुत ही अच्छे लीडर ऑलरेडी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो और बेहतर हो जाएंगे, और ही यंगेस्ट पर्सन मुझसे 2 साल ही बड़े हैं। तो मैं उनकी तरफ बहुत देखता हूँ और मैं बहुत कुछ उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स राघव चड्ढा, ही इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लीडर, सो बट ही इज यंग, सो आई बिलीव के राघव भाई, दुर्गेश भैया इन द मेल। और अगर मैं फीमेल में बात करूं तो आतिशी है, बट आई डोंट नो वेदर यू गाइस कंसीडर हर एज यंग लीडर और नॉट, क्योंकि वो बहुत टाइम से और बहुत मैच्योर है, तो हमेशा से ही। और बाकी और भी बहुत सारे हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन लोकल लेवल पे राखी बिरलान, who is our MLA from Mangolpuri, and she is ex-minister also, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे। तो राखी बिरलान है जो एक जिनमें बहुत कैपेबल है वो, और वो यंग भी हैं, MLA भी हैं, एक्स मिनिस्टर भी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो एक बहुत अच्छा होंगी। तो उम्मीद है, मैं तो ये चाहता हूँ मैं भी एक बहुत अच्छा, आई एम यंग, आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ लीडर, गुड लीडर, जो कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं सर। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने मान लीजिए पब्लिक पॉलिसी में काम किया है, उसमें पढ़ाई करी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ी है, दे वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड समहाउ इन द गवर्नेंस प्रोसेस एंड द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। कोई एवेन्यू है कि दिल्ली गवर्नमेंट में कि such people youngsters can readily be involved in policy making and studies like that? Yes, we do. गवर्नमेंट के पास एक पोर्टल है, हर साल गवर्नमेंट 2 प्रोग्राम होते हैं उसमें। एक तो होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो मोस्टली उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं, जो गवर्नमेंट का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। और दूसरा दिल्ली गवर्नमेंट की फेलोशिप चलती है, उसमें मीडिया फेलोज होते हैं। इसमें आई थिंक देयर आर 3 क्राइटेरियाज। फर्स्ट इज असिस्टेंट फेलो। असिस्टेंट फेलो इज वन हु इज आई थिंक मास्टर्स जिसने किया हो, जो मास्टर्स हो, दैट इज असिस्टेंट फेलो, दैट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट फेलो, जिसने भी मास्टर्स किया हुआ है। एक हमारा मीडिया फेलोज है,
जो मास कम्युनिकेशन के जितने भी बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट्स यंग लोग होते हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट में फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और एक होता है फेलो, तो फेलो में क्या होता है, दैट इज पीएचडी के बाद जो भी पीएचडी खत्म कर चुके होते हैं, जो पीएचडी होते हैं, वो लोग वो फेलोशिप, वो उनका एक सबसे ऊपर वाला क्राइटेरिया होता है। वो लोग जितने भी लोग हैं सर, जितने भी मैंने आपसे बात करी है, चाहे असिस्टेंट फेलो हो, मीडिया फेलोज हो या फेलोज हो, ये जो भी ये फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर यंग लोग ही होते हैं। और ये सब लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके ये पॉलिसी मेकिंग और बहुत सारी चीजों में ये लोग काम करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा जैस्मिन शाह इज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डायलॉग कमीशन। तो इस दिल्ली डायलॉग कमीशन में बहुत सारे फेलोज होते हैं। ये जो विधानसभा है, विधानसभा में बहुत सारे फेलोज होते हैं। जो सेक्रेटेरिएट है गवर्नमेंट का, दिल्ली सेक्रेटेरिएट है, सीएम ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट फेलोज और फेलोज होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी यंग लोग हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट का फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पॉलिसी मेकिंग वगैरह में अपना योगदान दे सकते हैं। Okay, thank you, Akash. Anyone else? I have to clarify one thing about the NACH. Sahil here. Yes. Hi Akash bhai, great to have you here. Just wanted to add some news on this. As long as you're a Indian passport holder, you can now set up a monthly donation for AAP on the party website using your international credit card also. जब आप पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं वही सेम प्रोसेस सेम है। ये जस्ट पहले बाहर के कार्ड नहीं एक्सेप्टेड थे, अब इंटरनेशनल कार्ड भी एक्सेप्टेड हैं। You just set up a monthly payment. That's it. Okay, thank you everyone. Thank you for joining the call. Thank you so much everyone. Thank you so much everyone. Pleasure. It is my pleasure, and hope we'll be stay connected. Thank you. Thank you.